Let us read about the NTA examination which was held on June 2021. I will read only the question answer portion. Okay, explanation I am not reading because we have to complete the revision as soon as possible. So first question, number one: a researcher conducted a study to have initial idea of scope and magnitude of the problem under study and to test the feasibility of more expensive research. Such a study is called exploratory study. Such a research is called exploratory study. Then second question, an independent variable जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, in an experimental study which is manipulated by the investigator, it is will is technologically known as treatment variable. ठीक है. Third question है, if the distribution of scores obtained by a group of examinees on a test is skewed negatively, then which of the following statement is false? कौन सा false होगा? तो the modal value was less than the mean but more than median, ये गलत है, बाकी सब सही है. The case study mentioned is mostly involved in which of the following qualitative research design? Case study method ज़्यादातर किस में होता है? वो होता है इथनोग्राफिकल डिज़ाइन में. Which of the following statements defines the basic philosophy, theory and practice of teaching children according to critical pedagogy? तो उसका आंसर है क्वेश्चनिंग dominant beliefs or world views about knowledge and learning and discover deeper meaning and root causes of the phenomenon. 6. An engineering company wants to recruit fresh graduates for its specific nature of work. The company decides to conduct a selection test. ठीक है, एक कंपनी रिक्रूट करना चाहता है इंजीनियरिंग लड़के लड़कियों को, तो सिलेक्शन टेस्ट एक करेगा. व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पज? तो कौन सा सिलेक्शन टेस्ट इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा? कौन सा टेस्ट लेगा? वो लेगा एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है. देन 7 question. In portfolio assessment technique is a part of pedagogical practices, is used for the purpose of evaluating students and involves a recording. किसका रिकॉर्ड रखा जाता है उसमें? प्रोग्रेस इन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. पोर्टफोलियो का मतलब है, मालूम है कि एक लंबा पीरियड तक आप लोगों का जो भी ग्रेड्स होगा, जो भी मार्क्स होगा, उसमें रखा जाता है. बेस्ट परफॉर्मेंस जो भी होता है आपका, तो उसको देख के कैलकुलेशन किया जाता है कि हाँ इसका स्टैंडर्ड कैसा है क्या. 8 नंबर क्वेश्चन, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक यूज टू एनालिसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इन द क्लासरूम. ठीक है, एज ए फीडबैक मैकेनिज्म मेनली टेक्स इनटू अकाउंट. किसको लिया जाता है? वो मेनली फ्लैंडर्स के इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक में जो बच्चों के साथ किया जाता है वो है वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट्स. Then 9. The system of objective analysis of written or spoken verbal communication is known as the system of objective analysis of किसका? written and spoken verbal communications is known as interaction analysis. बातचीत करते हैं ना. Which of the following terms best indicates the intent of a qualitative research? Which of the following terms best indicates the इंटेंट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च? कौन कौन सा होगा? क्वालिटेटिव रिसर्च का इंटेंट किस में बेस्ट एक्सप्लेन किया जाएगा? फर्स्ट होगा अंडरस्टैंडिंग, देन एक्सप्लोरेशन, देन इंटरेक्शन. ठीक है, एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन होगा. Which of the following are parts of the purpose of quantitative research? क्वांटिटेटिव रिसर्च का पर्पज क्या होता है? उसका पर्पज होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, नहीं है. डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप्स एमोंग वेरिएबल्स, हाँ ये होगा, रिलेशनशिप एमोंग वेरिएबल्स. फिर इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स नहीं है. कंफर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस ये होगा, और एक होगा जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स टू अदर सिचुएशंस. 12th, which of the following statistical techniques may be successfully used to analyze research data available on ordinal scale
ओनली। ऑर्डिनल स्केल में कौन सा यूज किया जाता है? आंसर है क्वार्टाइल डेविएशन, फिर परसेंटाइल रैंक्स और एक है स्पर्समैन कोरिलेशन मेथड। बाकी जो स्टूडेंट्स टी टेस्ट का टेस्ट ये नहीं होगा। 13. Which of the following statements are true for portfolio assessment technique used for performance evaluation of students? Performance evaluation जो किया जाएगा उसमें कौन सा टेक्निक यूज होगा? Which of the following statements are true for portfolio assessment technique? Portfolio assessment technique used for किस लिए यूज किया जाता है portfolio assessment technique? परफॉर्मेंस जो इवेल्युएट किया जाता है स्टूडेंट्स, तो कौन सा ट्रू होगा इसमें से? फर्स्ट दिया गया है एसेस स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड अचीवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये तो सही है, ठीक है। स्कोरिंग प्रोसेस इज सिंपल रिलायबल एंड वैलिड, ये नहीं है। मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग इज एनहांस्ड, ये होगा। फिर एनेबल स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट देयर ओन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट्स, ये होगा क्योंकि वो अपना परफॉर्मेंस खुद जांच कर सकता है ना। द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन इज लेस डिमांडिंग एंड टाइम सेविंग, ये नहीं, ये तो लॉन्ग पीरियड तक चलता है। फिर 14 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट स्कोर? which of the following are the characteristics? कौन सा characteristics है किसका? क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर्स, कौन सा होगा इसका आंसर? देखो ए होगा, पहला वाला ए होगा हमारा। अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स बाय ईच इंडिविजुअल लर्नर इज एसेस, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल लर्नर्स का एसेस किया जाएगा, उनका स्किल होगा। फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड स्किल्स रेदर देन बॉर्डर लर्निंग, ठीक है, उनका स्किल को जांचा जाएगा। फिर टेस्ट आइटम्स discriminate between examinees in terms of relative positions in the group test, ये नहीं होगा। फिर कौन सा होगा? स्कोर्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल रैंक्स और स्टैनाइंस टू एंश्योर इंटर एग्जामिनी कंपैरिजन, नहीं होगा। एन एग्जामिनी कैन कंपेयर हिज ओन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स और ओवर टेस्टिंग ओकेजन्स, ये होगा, ठीक है। फिर 15 क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ऑन वन इज लेबल्ड एज असर्शन अनदर वन इज रीजन, ठीक है। देखते हैं, द असर्शन है द वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ ए टेस्ट वेरीज फ्रॉम 0 to +1 बट कैन नॉट बी नेगेटिव। द वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, रिलायबिलिटी जो कोफिशिएंट हो वो 0 से +1 तक होता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता है। रीजन दिया गया है द कोरिलेशन ऑफ ए सेट ऑफ स्कोर्स विथ इटसेल्फ और ए सेट ऑफ पैरेलल स्कोर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए नहीं होता है क्योंकि द कोरिलेशन जो आपस में रिलेशन होता है और फिर सेट ऑफ स्कोर्स जो एक सेट ऑफ स्कोर्स होता है विथ इटसेल्फ खुद के साथ और सेट ऑफ पैरेलल सेट्स इक्वल जैसे पैरेलल सेट्स के साथ कभी वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों सही दिया गया है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया है हमारा, इसको पढ़ के कंप्रीहेंशन जो दिया गया है उसको पढ़ के हम 5 क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है, उसको मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Who should be the first teacher of a child and as indicate in the passage? इस पैसेज में तो दिया गया है मदर एंड फादर एट होम, ये तो दिया गया है पैसेज में। फिर व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द ऑथर अबाउट एजुकेशन एंड वर्क, एजुकेशन एंड वर्क टू बी इंटीग्रेटेड, ये पैसेज के हिसाब से होगा। हाउ डज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इफेक्ट द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो होता है वो कैसे इफेक्ट करता है कोई भी एम्प्लॉई को, वो प्रोडक्टिविटी लेवल एंड मोटिवेशन लेवल के ऊपर इफेक्ट करता है। अच्छा एनवायरनमेंट से तो अच्छा प्रोडक्टिविटी होता है ना, माइंड फ्रेश रहता है, अच्छा काम कर पाते हैं लोग। हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंडेड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, कौन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में बोले थे? FW टेलर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में कौन बोले थे? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी कोऑपरेशन एंड पर्सनल एफिशिएंसी लेवल, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल जो है
प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। उसका आंसर है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी, कोऑपरेशन एंड पर्सनल एफिशिएंसी लेवल। Who among the following list of thinkers of management has developed the theory of variation? वो एडवर्ड डेमिंग के थे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज PDCA stands for in the theory of total quality management? थ्योरी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसमें PDCA क्या है? उसका है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, which of the following gives a description about health and health related states of an individuals? वो है ICF मॉडल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड इन द PW एक्ट 2016 ऑफ इंडिया? कितने टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज दिया गया है जो 2016 में PWD एक्ट आया है? वो है 21। ठीक है, अभी कितना है? 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, लास्ट 2011 में सेंसस हुआ था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन इंडिया? नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन इंडिया कितने हैं? 2.68 करोड़ है। ठीक है। सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है? पहला दिया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसका मीनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है? वेयर द चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स आर टॉट एलोंग विथ नॉर्मल वंस। मतलब स्पेशल नीड वाले बच्चे और नॉर्मल बच्चे एक साथ जहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन हो रहा है बोल के हम लोग समझेंगे। फिर स्पेसिफिक एजुकेशन, स्पेसिफिक एजुकेशन कहाँ हो रहा है? वेयर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर टॉट इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चे अलग पढ़ रहे होंगे, अलग सेपरेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे होगा स्पेशल एजुकेशन। देन होगा हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन, किसको बोलेंगे हम? वेयर डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर टॉट इन द सेम क्लास विथ स्पेसिफिक केयर, जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चे वही क्लास में पढ़ेंगे लेकिन स्पेशल केयर लेके पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन। नॉर्मल एजुकेशन किसको कहा जाता है? नॉर्मल एजुकेशन मतलब फॉर द चिल्ड्रन विदाउट एनी स्पेशल नीड्स, कोई स्पेशल नीड्स के बिना जहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे उसको हम नॉर्मल एजुकेशन बोल के बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है लीडरशिप थ्योरी एंड बेसिक फोकस ऑफ द लीडरशिप थ्योरी। लीडरशिप थ्योरी क्या है और उसका बेसिक फोकस क्या है? ठीक है। कॉन्टिजेंसी थ्योरी, उसका बेसिक फोकस कहाँ पे है? कॉन्टिजेंसी में इट इज द सर्कमस्टेंस दैट मेक ए लीडर। कॉन्टिजेंसी में इट इज ए सर्कमस्टेंस दैट मेक ए लीडर। फिर ट्रांजेक्शनल थ्योरी, ट्रांजेक्शनल थ्योरी में क्या होगा? मोटिवेट फॉलोअर्स, फॉलोअर्स को मोटिवेट किया जाएगा बाय अपीलिंग टू देयर इंटरेस्ट एरिया, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है उसी तरफ उनको मतलब मोटिवेट किया जाएगा, वो होगा ट्रांजेक्शनल थ्योरी। फिर ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी कहाँ पे है? ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी में आइडेंटिफाई नीडेड चेंज, जो भी चेंज चाहिए बच्चों में या फिर जो लर्नर में, उसको चेंज करके एंड क्रिएट ए विजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक पीपल कमिट टू इट। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करके हम उनको डेवलप करेंगे, उसको बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। फिर है सर्वेंट थ्योरी। सर्वेंट थ्योरी क्या है? अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ पीपल, जो लोगों का नीड है उसको देख के सेटिस्फाई करने के हिसाब से जो पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे सर्वेंट थ्योरी। ठीक है। नेक्स्ट 31, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन ए क्लासरूम? क्या प्रोसेस रहेगा एक इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम बनाने के लिए? देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस नहीं। आइडेंटिफाई CWSN इन द क्लास, उसको आइडेंटिफाई करेंगे CWSN स्टूडेंट्स को। फिर स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ CWSN, उनका प्रॉब्लम क्या है देखेंगे। फिर प्लान एंड ऑर्गेनाइज टीचिंग बाय अडोप्टिंग द मेथड एंड अप्रोच, पहले उसके बाद प्लान करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे टीचिंग एडप्टिंग द मेथड एंड अप्रोच, कौन से मेथड से पढ़ाने से उन लोगों को समझ में आएगा उसको देखेंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, उनका प्रोग्रेस देखेंगे, फिर लास्ट में फीडबैक देंगे, किसको, टू स्टॉक होल्डर्स। तो पहला क्या हो गया हमारा, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फिर स्टडी द प्रॉब्लम, उसके बाद पहले आइडेंटिफाई करेंगे CWSN को, उनको स्टडी करेंगे प्रॉब्लम क्या है देखेंगे, उसके बाद प्लान करेंगे कैसे पढ़ाना है उन लोगों को, उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे, लास्ट में हम फीडबैक देंगे, ठीक है। उसके बाद है What are the 32 number question? What are the essential requirements to make education inclusive? अच्छा, एजुकेशन को इंक्लूसिव करने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सा है, देखो, एसेसिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, पहले तो इंस्टीट्यूशन पास में होना चाहिए, एसेस कर पाना चाहिए हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, उसके बाद क्या है, टीचर्स से सपोर्ट चाहिए, टीचर्स कॉम्पिटेंसीज, टीचर्स का कॉम्पिटेंसी चाहिए, फिर पीयर ग्रुप सपोर्ट एंड काउंसलर सपोर्ट, इन सब के सपोर्ट भी चाहिए, किस लिए, एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाने के लिए। एसेसिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, टीचर्स कॉम्पिटेंसीज, पीयर ग्रुप सपोर्ट एंड काउंसलर्स सपोर्ट। 33 given below are two statements, one is level assess and another one is reason। देखो, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीपुल्स पार्टिसिपेशन, ये तो सही है, पीपल्स पार्टिसिपेशन होता ही है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में, है ना। देखते हैं दूसरा, ए लीडर्स हु टेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बाय हिमसेल्फ बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स। नहीं, जो खुद ही सब डिसीजन लेगा वो कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में बिलीव करेगा। डेमोक्रेसी मतलब क्या, सब लोगों के मतलब डिसीजंस को कंसिडर किया जाएगा ना, सोचा जाएगा उनके बारे में, तो ये ठीक है, आर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट किसे कहा जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर बाय द इंस्टीट्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, टोटल जितना एक्सपेंडिचर हुआ और एक इंस्टीट्यूशन में डिवाइडेड टोटल जितने भी बच्चे हैं, 200 हो, 400 हो, 500 हो, उसको डिवाइड करके जितना आएगा उसको बोला जाता है यूनिट कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 35, फिर यहाँ पे भी असर्शन और रीजन है, देख लेते हैं। नाक एसेसेस एंड एक्रीडेट्स, नाक का काम क्या है, NAAC क्या करता है वो, ओनली दोज इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग दैट हैव आइदर completed 6 years of establishment or have produced 2 batches of graduates। जो कोई भी इंस्टीट्यूट जिसको 6 years हो गया है या फिर 2 बैच जो लोग ग्रेजुएट निकल चुके हैं उनको वो एक्रीडेट करता है। नहीं, ये गलत है, गलत है ना, नहीं सही है, सही है ये। बट आर देखते हैं, IQAC हेल्प्स टू फाइंड आउट द न्यू कोर्सेज टू स्टार्ट एंड रिक्रूट टीचर्स। नहीं, ये नहीं है, बस ए सही है। क्या बोला है ए में, नाक एसेसेस एंड एक्रेडिट्स ओनली दोज इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग दैट हैव आइदर कंप्लीटेड 6 years ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और हैव प्रोड्यूस्ड 2 बैचेस ऑफ ग्रेजुएट्स, ये सही है। उसके बाद दिया गया है, ये हमारा एक पैराग्राफ दिया है कॉम्प्रिहेंशन, उसका क्वेश्चन आंसर दिया गया, इसको मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। बस आगे उसका कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन छोड़ते हैं, बाकी देखते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, लर्नर सेंट्रिक जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिया गया है। व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्रैक्टिस टुडे इन आवर क्लासरूम, टीचर सेंट्रिक, इस पैराग्राफ के हिसाब से है ये, ठीक है, पैराग्राफ के हिसाब से वो जो दिया गया है। हाउ इज, टिक क्या है, मैंने टिक क्या है उसको देख के आप कर सकते हो। हाउ इज आउटपुट ऑफ टीचिंग लर्निंग विजुअलाइज टुडे, प्रोटोटाइप दिया गया है। 1 2 3 4 5 हो गया, 41 से हम देखते हैं अभी। एमंग द फॉलोइंग व्हिच रिलेशनशिप रिमेन इनकंक्लूसिव, इनकंक्लूसिव रिलेशनशिप कौन सा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर हेल्पफुल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नहीं है। माल न्यूट्रिशन कैन इम्पेयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नहीं है। फिर ईटिंग ब्रेकफास्ट इज बेनिफिशियल फॉर कॉग्निशन, नहीं है। ओबेसिटी हैज़ द एसोसिएशन विथ कॉग्निशन, ये सही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है और कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। कॉन्सेप्ट क्या है पहला, पीपुल हु लिव इन इंडिविजुअलाइज्ड कल्चर, जो लोग इंडिविजुअलाइज्ड कल्चर में रहते हैं
उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, वैल्यू इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंस को वैल्यू करते हैं। फिर कंपटीशन एंड पर्सनल अचीवमेंट को ध्यान देते हैं, जो लोग इंडिविजुअलाइज्ड कल्चर में रहते हैं। सेकंड, पीपुल हु लिव इन कलेक्टिविस्ट कल्चर, जो लोग कलेक्टिविस्ट कल्चर में रहते हैं वो लोग सोशल हार्मोनी को देखते हैं, ठीक है, मिल बांट कर रहना, रेस्पेक्टफुलनेस, सबको रेस्पेक्ट करते हैं, ग्रुप नीड्स, गैदरिंग में रहते हैं, अच्छा पसंद करते हैं उसको कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में। फिर कल्चरल कंपैरेटिव अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच में क्या होता है, वहाँ पे टेस्ट वेस्टर्न आइडियाज, जो कंपैरेटिव अप्रोच में, कल्चरल कंपैरेटिव अप्रोच में रहते हैं वो लोग वेस्टर्न आइडियाज को टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, अबाउट पर्सनैलिटी इन अदर कल्चर्स। फिर द इंडिजिनस अप्रोच में क्या होता है, अपोजेस वेस्टर्न अप्रोचेस, जो इंडिजिनस जो रहते हैं वो वेस्टर्न अप्रोच को पसंद नहीं करते हैं, टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी इन नॉन वेस्टर्न सेटिंग्स, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, हेल्थ इज ए स्टेज ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ये तो साइंस का डेफिनेशन है ही। दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये किसने दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। सक्सेसफुल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट फैक्टर्स। सक्सेसफुल इंटेलिजेंस कौन कौन सा फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, 3 ठो। क्या क्या है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। दिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बिलोंग्स टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग क्या बोले थे, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस किसको बोले थे, वो 3 टाइप ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दिए थे वो। पहला है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एक है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। देन वेस्टर्न एडल्ट इंटेलिजेंस स्किल हेल्प्स इन मेजरिंग। वेस्टर्न एडल्ट जो दिए थे इंटेलिजेंस स्किल, वो किसको मेजर करने में हेल्प करता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को। रिगार्डिंग मेटा कॉग्निशन व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत है जो, ठीक है, वो है मेटा कॉग्निशन रेफर्स टू द प्रोसेसेस यूज्ड टू प्लान, मॉनिटर एंड एसेस ओदर्स अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। ये गलत है, बाकी तीनों सही है, पढ़ लेती हूँ सही वाला। मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग। मेटाकॉग्निशन मतलब क्या है, किसी दूसरे के बारे में, मतलब वो क्या सोच रहा है, इज थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, वो क्या सोच सकता है उसको सोचना है, वही मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन इंक्लूड्स ए क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस थिंकिंग, ठीक है, क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस थिंकिंग एंड लर्निंग। मेटाकॉग्निशन रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू externalize mental events, externalize mental events। 47 students create their learning based on their previous experience। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्रिएट देयर लर्निंग, उनका लर्निंग क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो पहले वाला एक्सपीरियंस रहता है उसको देखकर अपना लर्निंग क्रिएट करते हैं। इज द बेसिक एजम्पशन, ये किसका एजम्पशन है, बेसिक एजम्पशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी क्या, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी क्या सोचता है कि वो प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना लर्निंग चूज करते हैं स्टूडेंट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग इज एसेंशियल। कॉन्सेप्ट काउंसलिंग क्यों एसेंशियल है, डेमोक्रेटिक के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग इज एसेंशियली फॉर इज एसेंशियली डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट 49, the approach of counseling, the approach of counseling in which the therapeutic process is directed along lines considered relevant by counselor is named as। देखो, the approach to counseling in which the therapeutic process is directed along lines considered relevant by the counselors is named as directive counseling, ठीक है। अभी 50 क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ काउंसलिंग, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ काउंसलिंग क्या होता है, किसने दिया था, वो कार्ल रोजर्स ने दिया था। फिर साइकोडायनामिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग, ये किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉड दिया था, ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच ऑफ काउंसलिंग किसने दिया था, वो इवान पेवलोव, वो बिहेवियर देख के करते थे, ठीक है। कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ काउंसलिंग किसने दिया था, एरॉन बेक, ठीक है। नेक्स्ट 51 to 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना बस क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे पहले, फिर मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगी दूसरा वाला।